Yes, in the last lecture, we have started with the addressing modes of 8086. We have told you the addressing modes is nothing but we need to address the data present in the register, present in the IO devices, or it may be present in the memory. So how do you call that data from the memory or from the IO devices or from the register? So that is called as addressing modes of 8086. So total, I have told you there are 12 modes are there, addressing modes, and these 12 modes are categorized into five different categories, or they are called as groups. So group 1 is addressing modes for register and immediate data. So under this we have only two, and we have already seen this. One is register addressing, second one is immediate addressing. In register addressing, I have told you that the data is present in the register. I have given an example that if I am writing down move AX comma BX. So if I write down AX comma BX, that means the data which is of 16-bit or it may be 8-bit, there is no harm. That is moved into the AX. If it is 8-bit, the data will be moved into AL. If it is 16-bit, the data will move into AX. Lower 8-bit AL, higher 8-bit AH. Okay, so this will come under the register addressing. In immediate addressing, you have the data present in the instruction itself. That means you are mentioning the data in the instruction itself. That is move AX comma 0020H. 0020H. Okay, I have told you there is no bracket, square bracket. अगर हम square bracket लिखते हैं तो इसका meaning different होता है. So if I want to explain you that in immediate addressing mode, this is an example in which my data is present in the instruction itself, and this data will be moved into AX. The data size is 16-bit, and the register which will hold that 16-bit is also 16-bit register, that is AX. Okay, so 0020 will move into AX. So this was about the immediate addressing. Then we have understood the second group, that is addressing modes for memory data. For memory data, so your data is present in the memory. So for that we have seen the direct addressing. In the direct addressing, I have told you that the address is mentioned in the instruction itself, direct addressing. Okay, so if I am writing down move AX comma, and if I write down 5000H, 5000H. Okay, now this is 16-bit. And you have physical address of 20 bits. I have told you the calculation of 20 bits, that is memory address, or it is called as a physical address. For to calculate the memory address or physical address, you require the base address, that is also called as effective address, as well as you require offset. So I can say memory address or MA or physical address equals to effective address or base address plus offset address. Okay, यहाँ पे हमारा सिर्फ 16-bit का एड्रेस दिया रहेगा, वो इंटरनल कैलकुलेशंस माइक्रो प्रोसेसर 8086 खुद करता है. So this is a example for direct addressing mode. Then we have seen the fourth one, that is register indirect addressing. Register indirect addressing mode. In the register indirect addressing mode, I have given an example. If I am writing down move AX comma in bracket BX. Now this square bracket is important. Square bracket का यही मतलब होता है कि I am treating whatever in the bracket as a memory location or memory address. That won't be considered as a data. जो भी square bracket में रहेगा, that will be treated as a memory address. तो यहाँ पे क्या है bracket में BX. So I have given you an example. If my BX is 4895H, then this is treated as a memory address. जहाँ पे मेरा डेटा प्रेजेंट है और वो डेटा मुझे वहां से लेके AX में डालना है. Okay, here also I have told you that your offset address of data is either BX or SI or DI. तो हमारा offset address जो है ना, BX जो offset address है, I can take in BX, I can take in SI, or I can take in DI. Okay,
and the default segment is either DS or ES. हम जो डेटा लेने वाले हो, the data can be in the default in DS or it can be in ES, DS और ES. तो हम यहाँ पे move AX, BX लिख सकते हैं, हम यहाँ पे move AX, DI लिख सकते हैं, हम यहाँ पे move AX, DI लिख सकते हैं, आप कुछ भी ले लो. ये ऑफसेट के लिए हम 3 रजिस्टर यूज कर सकते हैं. As far as register indirect addressing mode is concerned, okay, so that is clearly I have given. Now we are moving forward to understand the fifth one. We are in the stage to understand the fifth addressing mode. Please write down the fifth addressing mode. I hope यहाँ तक सबको क्लियर था कंसेप्ट. ओके, यहाँ पे सिर्फ इम्पोर्टेंट है कि वो फिजिकल एड्रेस या फिर मेमोरी एड्रेस कैलकुलेशंस कैसे होते हैं, जो मैंने पहले भी लिया था और कल के लेक्चर भी मैंने वो सीखा है. ओके, नाउ राइट ऑन द that is the fifth one, that is based addressing mode. So this is the fifth one, based addressing सर mode. हाँ सर, मेरा एक डाउट क्लियर करोगे? हाँ सर इसके पहले वाले में सर रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग में सर हाँ. जब भी हम लोग उसमें ऑफसेट एड्रेस स्पेसिफाई कर रहे हैं इंस्ट्रक्शन में, तो सर वो हाँ. बेस एड्रेस कैसे कैलकुलेट हो रहा है? मतलब हम लोगों को हम स्पेसिफाई नहीं करेंगे तो क्या वो खुद से सिलेक्ट होता है? नहीं, फिर से कौन सा बेस एड्रेस? क्या? हाँ सर, बेस एड्रेस. बिकॉज सर इंस्ट्रक्शन में तो हमने BX स्पेसिफाई किया और BX तो हम लोगों ने इफेक्टिव एड्रेस के जैसे कंसिडर किया ना, तो हाँ. सर बेस एड्रेस कैसे चूज होएगा फिर? उसमें बेस एड्रेस मैंने वही बताया था ना कल के, इसमें मैंने वही बताया था कि इफ आई एम टेकिंग BX, so BX is 4895, so it will be 48950, 48950. So that is your offset and your default is your data segment. तो आपका डेटा सेगमेंट में जो रहेगा, आपका जो डेटा सेगमेंट है ना, डेटा सेगमेंट कहाँ पे रहता है? BIU में रहता है. डेटा सेगमेंट कहाँ पे होता है? BIU में. हाँ, BIU में रहता है सर. हाँ, तो DS में जो मेंशन रहेगा, DS जो मेंशन रहेगा 16 बिट का, दैट विल बी टेकन एज द बेस एड्रेस एंड ऑफसेट एड्रेस आपको BX बता रहा है. तो जब आपको बेस एड्रेस पता है और जब आपको BX की वैल्यू पता है, तो बेस एड्रेस को वो BX की वैल्यू को ऐड कर दो, तो आप बराबर वहां पे पहुंचोगे जहाँ पे आपका डेटा आपको चाहिए. ओके सर, समझा ना? फॉर एग्जाम्पल अगर DS है 5000, क्योंकि इसका साइज कितना है? 16 बिट, और आपका BX आपको दिया है, मैंने जो लिख के दिया था 4895H. ओके, तो ये आपका बेस एड्रेस है 5000. आपको मैंने बताया था ये 16 बिट है, आपका फिजिकल एड्रेस होता है 20 बिट का, तो इसको आपको अपेंड करना है 10. ये देखो 10 आ गया, 10 आ गया. ये समझा मुझे. इसमें आपको ये ऐड करना है 489, यस 4895, 4895. तो ये आ जाएगा 598450. 1 2 3 4 5 ये वाला, तो ये आएगा 54895. So this is your 20 bit of address. This is your 20 bit of address. हाँ और सर. ये एड्रेस लोकेशन पे आपका डेटा है जो मुझे मूव करना है AX में. हाँ सर, सर मेरा डाउट ये है कि सर वो जो 5000H है सर, वो तो सिर्फ एक लोकेशन है ना डेटा सेगमेंट में सर, उसमें से वो 5000H. नहीं, ये 5000 लोकेशन नहीं है. दिस इज द बेस एड्रेस. आपका जो डेटा सेगमेंट में जो रहेगा ना, आपका ये जो मेमोरी है, ये मेमोरी में ये सपोज इतना डेटा सेगमेंट है, इतनी साइज है डेटा सेगमेंट की, तो इसका स्टार्टिंग एड्रेस जो है ना वो DS में रहता है. ओके सर. हाँ, ये देखो यहाँ से शुरुआत हो रही है, यहाँ तक खत्म हो रहा है, तो ये स्टार्टिंग एड्रेस जो है डेटा सेगमेंट का वो DS में होता है. ओके, सो वो उसका स्टार्टिंग एड्रेस है. ओके सर, समझा. हाँ, ये स्टार्टिंग एड्रेस. हाँ सर, ओके सर, समझा मुझे. समझा ना भी? हाँ सर. ओके. So we are going to understand the base addressing mode. हमने अब तक सर्कल करके आया, तो अभी इसको कहाँ पे सर्कल करना है? यहाँ पे सर्कल कर दो. बेस, ये फोकस वर्ड है, बेस. So what is the base addressing mode? Okay, we'll see this with an example. We'll see with this an example. If I'm writing down an example,
एग्जाम्पल बाद में लिखो, पहले समझो. इफ आई एम राइटिंग डाउन मूव dx comma bx plus 04, bx plus 04. Okay, if I am writing down this bx plus 04. Now here we have to understand that the base address. Now here base address is bx plus 08. Your base address. Okay. Now when I am talking about the when I talk about this base addressing mode, you should know that the offset address of the operand जहां पे मेरा डेटा है is given by the sum of content of bx and 8 or 16 bit of displacement. जहां पे मेरा डेटा है जो मुझे dx में लाना है, वो डेटा का लोकेशन कैसे मिलेगा, उसके लिए मुझे bx को ऐड करना है किसके साथ, 04. 04 is called as a displacement. Now here if you see, this is 8-bit displacement. 04 बोले तो 8 bit. So this displacement can be 8 bit or this displacement can be 16 bit. So your bx is added with the displacement. हमने पहले क्या दिखा था, इसके पहले हमारा सब सिर्फ था ब्रैकेट में bx, लेकिन ये है bx प्लस द डिस्प्लेसमेंट. तो ये भी पता था कि मुझे वो जो एड्रेस है वहां से मुझे डिस्प्लेसमेंट करके 04 तक जाना है और वहां पे मेरा डेटा है जो मुझे dx में मूव करना है. ओके, तो पहला जो एग्जांपल था और इसमें यही फर्क है कि पहले इसमें डिस्प्लेसमेंट नहीं था, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है +04. ओके, सो दिस इज एन एग्जांपल एंड यू कैन जस्ट राइट डाउन. इसको और मैं आपको ग्राफिकली बताता हूँ, मैं ग्राफिकली बताता हूँ. हियर जस्ट राइट डाउन the offset address of the operand, the offset address of an operand, the offset address of the operand is given by the sum of contents of bx या फिर ये देखो, ये आप bx भी ले सकते हो या फिर bp. व्हाट इज bp? बेस पॉइंटर. व्हाट इज bp? बेस पॉइंटर. तो ये तो बेस एड्रेसिंग मोड में आप bx ले सकते हो या फिर bs की जगह bp ले सकते हो, इसलिए /bp. सो व्हाट यू हैव रिटन, द सम ऑफ कंटेंट्स ऑफ bx या फिर bp रजिस्टर्स एंड 8 बिट या फिर 16 बिट डिस्प्लेसमेंट. 16 बिट डिस्प्लेसमेंट. ओके, 16 बिट डिस्प्लेसमेंट. अगेन आई एम रिपीटिंग, आपने क्या लिखा है, द ऑफसेट एड्रेस ऑफ द ऑपरेंड इज गिवन बाय द सम ऑफ कंटेंट्स ऑफ bx और bp registers and 8 bit or 16 bit of displacement. 8 bit or 16 bit of displacement. Now with this, now write on the example, move dx comma bx plus 04. और इसके लिए now I will give you actually क्या हो रहा है, I will tell you actually क्या हो रहा है. See here now, ये लिखा, इसके बाद एक्सप्लेनेशन में लिखो. नॉट यस, यू कैन जस्ट राइट डाउन व्हाटएवर आई एम राइटिंग. योर डिस्प्लेसमेंट इज 04. एक काम करो, यहाँ पे करेक्शन करो, दिस इज 04h, दैट इज इन हेक्साडेसिमल. अगर हम h नहीं लेते तो इट विल बी ट्रीटेड एज अ डेसिमल. अगर h नहीं लेंगे तो डिसिमल, अगर h लिखना पड़ेगा. सो इट इज 04h. सो हियर your effective address equals to bx plus. Now as this is a 8 bit, convert this into 16 bits, so it is 0004h. So your effective address is bx plus 0004h.
Then what is your base address? Your base address is, now by default here the data segment will be taken. It can be data segment or extra segment, जो पहले केस में हमने देखा था. So here I'm taking as a data segment. So your base address is ds again multiply by 16 डेसिमल 16 जो पहले मैंने बताया था. या फिर आपको ये नहीं ठीक लगता तो ds में एक अपेंड करना पड़ेगा 0, या फिर उसका मतलब है मल्टीप्लाई बाय 16 बेस पे. सो इन दैट केस your memory address equals to base address plus effective address, base address plus effective address, base address plus effective address. आगे का मैं यहाँ पे लिख रहा हूं. सो कैन आई से मेरे dx में क्या जाएगा, मेरे dx में जाएगा ma, मेरे dx में जाएगा ma, या फिर आप बोल सकते हो और dl में जाएगा ma और dh में जाएगा ma प्लस 1. अब ये ग्राफिकल में देखो कैसा लिखते हैं. आई विल शो यू द ग्राफिकली, तब और क्लियर हो जाएगा ग्राफिकली, और यू कैन सी द पिक्टोरियल व्यू कि एक्चुअली वो क्या हो रहा है. विल सी द पिक्टोरियल व्यू कि एक्चुअली क्या हो रहा है. सो यू हैव अ डिस्प्लेसमेंट, and you have a register. You have a displacement and you have a register. As far as displacement is concerned, the displacement is 0004h, and as far as register is concerned, it is bx. Displacement है ये, register है bx as per the given example. So we have to add the displacement and we have to add the bx. We have to add the displacement and we have to add the bx. So this is addition, so that you will point to the memory location. So this is memory location. ये आपका है data segment. This is your data segment. और ये मेमोरी लोकेशन पे आपका ऑपरेंड है समवेयर हियर. तो ये जो लोकेशन है ना, मेरा जो डेटा है जहाँ पे मेरा ऑपरेंड है, तो ये लोकेशन कैसे मिला मुझे, ये करने के बाद डिस्प्लेसमेंट को रजिस्टर बेस के साथ ऐड कर दो. ओके, एंड एडिशन के बाद यू विल पॉइंट टू दिस. लेकिन यहाँ पे जाने के लिए मुझे चाहिए बेस रजिस्टर, तो इसलिए मैंने बताया था मेमोरी एड्रेस इज इक्वल टू बेस एड्रेस प्लस इफेक्टिव एड्रेस. तो बेस एड्रेस आपका डीएस में मिलेगा, उस पर 0 अपेंड कर देना. वो अपेंड होने के बाद आपको आपका इफेक्टिव एड्रेस ऐड करना है, तो अब आप जाके ये लोकेशन पे आओगे, तो यहाँ पे आपका डेटा है वो मूव करना है आपको डीएक्स में, तो दिस इज द पिक्टोरियल. सर लेकिन वो डिस्प्लेसमेंट एग्जैक्टली क्या चेंज हो रहा है सर, वो डिस्प्लेसमेंट के वजह से ये क्या चेंज हो रहा है. तो अगर ये डिस्प्लेसमेंट नहीं रहता तो नॉर्मल जो पहले हम करते थे, ये डिस्प्लेसमेंट नहीं रहता तो पहले जो एग्जांपल मैंने लिया था जहाँ पे आपने लिखा था मूव ax, bx, तो वैसा नॉर्मल रहता था. लेकिन bx में मैंने इतना डिस्प्लेसमेंट किया ना, तो हम इतना ऊपर गए ना, हम बेस एड्रेस से 04 ऊपर और गए. ओके, तो मतलब पहले सर हमने 5000h लिया था, तो अभी 5004h लेंगे. वो नहीं, बेस एड्रेस वही रहेगा, bx में अपन ये ऐड कर रहे हैं ना, bx में ऐड कर रहे हैं ना. हाँ सर, मैंने आपको बताया था ना, इफेक्टिव एड्रेस इज इक्वल टू bx प्लस 0004h. ये देखो ना, मैंने लिख के दिया था ना आपको. अच्छा, ओके सर. हाँ, ये देखो, इफेक्टिव एड्रेस इज इक्वल टू bx प्लस 0004h. तो ये 004h में इसको bx को ऐड कर रहा हूँ ना,
अगर हाँ सर। हाँ, अगर आपका डिस्प्लेसमेंट नहीं रहता तो ये इसकी जरूरत ही नहीं रहती थी, ये तो पहले जैसे हो गया था फिर, बस इफेक्टिव एड्रेस भी है जो पहले जैसा है। अंडरस्टूड? यस सर। यस। ये सिर्फ डिस्प्लेसमेंट बता रहा है, bx से हम और कितना ऊपर जाना है, कितना जाना है, 0004h इतना ऊपर जाना है, और वहां पे मेरा ऑपरेंड है, वो मुझे मूव करना है ax। दैट इज मीन। अंडरस्टूड? यस सर। yes, so this was for the base addressing. The next one is indexed addressing. Indexed addressing, ये सब बनाना है आपको ताकि आपको प्रॉपरली समझ में आए। Now index addressing mode. So number 6, indexed addressing mode. Indexed addressing mode. Indexed addressing mode. पहले वाला था बेस्ड एड्रेसिंग मोड, अब ये है इंडेक्स एड्रेसिंग मोड। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है ये इंडेक्स, उसको सर्कल कर दो ताकि समझ में आए कि इंडेक्स का क्या मतलब होता है, इंडेक्स का क्या मतलब होता है। ओके, नाउ हियर विल सी व्हाट इज इंडेक्स एड्रेसिंग मोड। Now there is not much difference. There is not much difference. यहाँ पे क्या difference है? I will just tell you why it is called as indexed. Okay, only because see here I will explain you with an example. Then I will give you in the writing. I will take an example in this. Move bx comma in the square bracket. See what I am writing down. Si plus 16h. Si plus 16h. Si plus 16h. This is example 1. You can take the next, the other example. Add ax comma in the bracket di plus 16h. Di plus 16h. Now, why it is called as indexed? Only because, see what register I have taken. You can take SI or you can take, yes, source index and destination index. Source index and destination index. So if I am taking the offset with related with register source index or destination index, then it becomes index addressing mode. Index addressing mode. So index addressing mode में you can take the offset register SI or DI. And what about the segment? By default, it is a data segment or extra segment. Okay. So here SI plus 16, that address location, from that address location, there the data will be moved into BX. And here DI plus 16H, that address location, from there the data will be moved into AX. Okay. So you just write down, इसको और मैं बताता हूँ, write down few sentences on this. This is a special case of register indirect addressing mode. This is a special case of register indirect addressing mode. Here offset of the operand is stored. Here offset of the operand is stored in one of the index registers. In one of the index registers. Here offset of the operand is stored in one of the index registers. Full stop. DS is the default segment.
DS is the default segment. DS is the default segment, and SI and DI are index registers, and SI and DI are index registers. Full stop. Here data is available. Write down. Here data is available at an offset address. Stored in SI. In data segment. Stored in SI in data segment. इसका मतलब क्या होता है? सोर्स इंडेक्स में जो भी वैल्यू है दैट इज पॉइंटिंग टू द मेमोरी लोकेशन इन डेटा सेगमेंट. उसका मतलब ये होता है. ओके, ये आपने जो लिखा है ना, हियर डेटा इज अवेलेबल एट एन ऑफसेट एड्रेस स्टोर्ड इन एसआई इन डेटा सेगमेंट, उसका मतलब होता है डेटा सोर्स इंडेक्स में जो भी वैल्यू है दैट इज यूज्ड एज अ that will point to the memory location in the data segment, जहां से वो डेटा मुझे मूव करना है BX में. ओके, एंड राइट डाउन वन मोर थिंग. ओके, नथिंग मोर देन दैट. अगर आपको वो पिक्टोरियल व्यू में दिखाना है तो आप वैसे ही दिखा सकते हो. इफेक्टिव एड्रेस बताओ. इफेक्टिव एड्रेस विल बी SI plus 16H. Okay, 16H. And your MA is your data segment into MA is what? Your base address plus EA. And you can show that in BL is MA and in your BH your MA plus 1. तो अगर आपको दिखाना वैसे दिखा सकते हो. और यहाँ पे एडिशन किया है. ये जो दूसरा ऑपरेंड है, एक ऑपरेंड है AX में, दूसरा ऑपरेंड है ये लोकेशन पे, वो दोनों को ऐड कर दो, रिजल्ट जो है वो AX में स्टोर हो जाएगा. ठीक है ना? तो यहाँ पे भी जो दिखाया है ये DI plus 16, दिस इज इंडेक्स एड्रेसिंग मोड. दिस इज इंडेक्स एड्रेसिंग मोड. दिस इज इंडेक्स एड्रेसिंग मोड. सर एक डाउट है. हाँ सर, एक रजिस्टर सर कितने एक मेमोरी लोकेशन ही होल्ड करता है ना सर? एक रजिस्टर बोले तो मतलब सर अगर हम लोग एक SI या DI या ये कंसिडर करेंगे तो सर ये इसमें मतलब एक ही. तो सर अगर 16 बिट्स अगर हम उसको प्लस ऐड कर रहे हैं मतलब, तो सर वो न्यू मेमोरी लोकेशन किधर पॉइंट करेगा? यस यू आर राइट. हमको सिर्फ डिस्प्लेट, ये हमको सिर्फ ये वैल्यू चेंज करनी है. ऐसा आपका वही रहेगा. आपको सिर्फ ये वैल्यू चेंज करनी है. आप लोकेशन में घूम सकोगे, ऊपर जा सकोगे, यू कैन गो प्लस करोगे तो. यू आर राइट. हाँ, ऐसा में एक ही डेटा रहेगा, लेकिन प्लस करके हम घूम सकते हैं. दैट इज राइट. अच्छा, और एक बात है, दिस थिंग आई हैव गिवन इन जनरल. 16H का मतलब होता है योर डिस्प्लेसमेंट, or you can say the data is of 16 bit. For specific, you can write down the example as SI plus I have taken the example from this Nagur Kani. You can take the 0A to 02 wait. Yes, it is FFA2. It is FFA2H. FFA2H. So FFA2 is the 16-bit data. Sorry, not 16-bit data, but this is the displacement. FFA2. So here it is specified that you, for index addressing mode, you have to take not 8 bits, but you have to take 16 bits. जो पहले जो लिखा था that was in general 16 bits, but to be more specific, if I have to give some example, I have written FFA2H. Okay, so here no 8 bit of displacement, but only 16 bit. FFA2. अगर 16 bit का भी है, sorry 8 bit का भी है, suppose it is 04, so you can append 00, so it becomes 16. Okay, but compulsory I have to take 16 bit of
displacement, 16 bit of displacement. Okay, so that is the meaning of this. So this was indexed only because using SI and DI. SI and DI ये यूज करते हैं हम, इसीलिए इसको इंडेक्स एड्रेसिंग मोड कहते हैं, यूजिंग द इंडेक्स रजिस्टर, सोर्स इंडेक्स एंड डेस्टिनेशन इंडेक्स. ओके, विल गो टू द नेक्स्ट वन, दैट इज 7th वन. सर हाँ सर जो सेकंड वाला एग्जांपल आहे ना त्याचं वर्किंग जरा समजवा ना. याच्यामध्ये ऍडिशन मध्ये काय होणार याच्यामध्ये? ओके ओके, सेकंड का अगर मैं ले रहा हूँ एड AX कॉमा DI प्लस, यहाँ पे सपोज मैं ले रहा हूँ 004AH. ओके, तो आपको कैलकुलेट करना है ये दिस विल गिव यू ऑफसेट. तो आपके DI में सपोज कुछ वैल्यू है, DI कहाँ पे मिलेगा आपको? EU में मिलेगा. DI कहाँ मिलेगा? EU में. तो DI की वैल्यू सपोज इट इज 16 बिट, so if it is 4000, okay, so you have to add 004A, so it is 004A, so it becomes A, it becomes 4, it becomes 0, it becomes 4. Okay, so your effective address is 404A, 404A. Okay, and your base address आपके DS में जो रहेगा उसमें अपेंड करना है, या फिर DS इंटू बेस टू द 16 बेस 10. आपको BA मिला, आपको EA मिला, तो आपका मेमोरी एड्रेस होगा BA प्लस EA, तो इट इज BA प्लस EA. तो आपका DS सपोज है 5000, 5 3 times 0H. So when I do the calculation, it becomes 500 4 times 0, so that it becomes 20. By after appending 0 या फिर multiplying by base 16 plus your effective address, that is 404A. So it becomes A, it becomes 4, it becomes 0, it becomes 4, it becomes 5. So 5404A, ये एड्रेस लोकेशन में जो भी डेटा है that is moved, जो भी डेटा है that is getting added with AX, और दोनों का एडिशन होने के बाद जो भी रिजल्ट आता है वो स्टोर होता है AX में, वो स्टोर होता है AX. आई होप यू हैव अंडरस्टूड. यस सर, थैंक यू. हाँ, या फिर कुछ समझ में ना तो मुझे पूछो. ओके, तो ये तो ये कैलकुलेशन ऐसे होते हैं. यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि DI में मेरा वैल्यू है, वो वैल्यू मेरा ऑफसेट बोल के मैं यूज कर रहा हूँ, जो हम BX में लेते थे, इसमें लेते थे, इसलिए इसका नाम है इंडेक्स एड्रेसिंग मोड, जहाँ पे रजिस्टर DI या फिर SI ले सकते हो आप. तो मेरा DI में मैंने एक वैल्यू लिया, और that value is nothing but the memory address, and that is nothing but the offset. So this getting added with this, so this becomes the effective address, and this effective address is getting added with base address, and that will give you memory address, that will give you memory. और वो memory address में आपका जो डेटा है वो AX के साथ ऐड करना है. AX में जो वैल्यू रहेंगी, दोनों ऐड होने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो स्टोर हो जाएगा AX, वो स्टोर हो जाएगा AX. सो दैट इज द मेन. आपको अगर ये लिखना है तो लिख डालो फटाफट. So we'll go with the 7th one then. We'll go to the 7th one. अगर ये समझ में आए तो बाकी की चीजें समझ में आती है. अगर ये समझ में आए तो बाकी की चीजें समझ में आएंगी. Shall I rub this? Yes sir. Okay. अभी सिर्फ मेरे ख्याल से 2 ही रह गए या 1 ही रह गए. तो विल सी दैट आल्सो. अल्टीमेटली ये सब खेल किसका है कि हम डेटा को कैसे बुलाते हैं, हम डेटा को कैसे क्या इंस्ट्रक्शंस बोल के बुला सकते हैं. या फिर हम बोल सकते हैं कि अगर मुझे कॉलेज जाना है, चेंबूर जाना है, आप लोग सब अलग अलग जगह पे रहते हो, अल्टीमेटली मुझे पहुंचना है कॉलेज में, तो यू कैन टेक एनी रूट, यू कैन टेक एनी रूट. So these different options of taking the route is nothing but the different addressing modes.
आर नथिंग बट द डिफरेंट एड्रेसिंग मोड्स। ओके, पूछना तो वहां पे ही है, कहाँ पे पूछना है, वो जो डेटा जहाँ पे जो मेमोरी में है, पूछना तो वहां पे ही है, लेकिन आप क्या क्या यूज करते हो, कौन कौन सा रूट यूज करते हो, क्या क्या ट्रांसपोर्टेशन यूज करते हो, वो सब चीजें जो होती है दैट इज कॉल्ड एज एड्रेसिंग मोड्स, दैट इज कॉल्ड एज एड्रेसिंग मोड्स। ओके, सो द seventh one that is base indexed addressing मोड, बेस इंडेक्स्ड एड्रेसिंग मोड। अब ये भी सिंपल है, अगर आपको बेस एड्रेसिंग मोड समझ में आया होगा और अगर आपको इंडेक्स एड्रेसिंग मोड समझ में आएगा तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, तो सर्कल कर दो बेस इंडेक्स को, ताकि पता चलेगा कि ये फोकस वाला वर्ड है, इसके कारण ये मोड चेंज हो गया है मेरा एड्रेसिंग का। सो इट इज बेस्ड इंडेक्स, इट इज बेस्ड इंडेक्स, इट इज बेस्ड इंडेक्स। सो आई विल गिव द एग्जाम्पल, आपको खुद को समझ में आएगा। एग्जाम्पल, if I'm writing down move ax comma, see here what I'm writing down, bx plus di, bx plus di, या फिर ये एग्जांपल अच्छा नहीं लगा तो दूसरा add cx comma ब्रैकेट में bx plus si। ये देखो बेस रजिस्टर भी यूज हुआ है और इंडेक्स भी रजिस्टर यूज हुआ है, इट कैन बी एस आई और डी आई। नाउ यहाँ पे और एक बात समझो, bx is called as base register, bx is called as base register। ओके, और हमने क्या बोला था, बेस रजिस्टर में bx यूज कर सकता हूँ या फिर bp, bp stands for base pointer। ओके, so bx is a base register और bp that is also is treated as a base register। ओके, bx या फिर bp, bx या फिर bp, और इंडेक्स कौन से रजिस्टर से, di और si, di और si। so this is the example, move ax comma bx plus di, add cx comma bx plus si। ओके, तो इसके लिए I will just give you the pictorial view, I will just give you the pictorial view। I will explain you for this for move, इसके लिए हम करेंगे for move ax comma bx plus d है, उसके लिए पिक्टोरियल व्यू कैसा आएगा, वो कैसा है, वो कैसे लिखेगा, इट इज मूव ax comma bx plus di, तो वो कैसा लिखेगा, आपका बेस रजिस्टर, आपका बेस रजिस्टर, आपका इंडेक्स रजिस्टर, यहाँ पे मेरा बेस रजिस्टर है bx, यहाँ पे मेरा इंडेक्स रजिस्टर है di, दोनों भी ऐड होंगे, दोनों भी ऐड होंगे, बाद में वो पॉइंट करेंगे मेमोरी में, डेटा सेगमेंट के मेमोरी में। ये आपका डेटा सेगमेंट है, बाय डिफॉल्ट डेटा सेगमेंट या फिर एक्स्ट्रा सेगमेंट, जहाँ पे आपका ऑपरेंड है, जहाँ पे आपका ऑपरेंड है, वो ऑपरेंड से लो और ax में डाल दो, यहाँ से ले लो ax में डाल दो। सो दिस इज योर बेस रजिस्टर एंड दिस इज योर इंडेक्स रजिस्टर एज फार एज move ax comma bx plus di is concerned। I hope you have understood this। सर ये ऑपरेंड किस में है, डीएस में स्टोर्ड है, आपका डेटा सेगमेंट है ना, आपका डेटा हमेशा डेटा हाँ। सेगमेंट में रहता है या फिर एक्स्ट्रा सेगमेंट में रहता है, कोड हाँ सेगमेंट में सर, रह सकता, कोड सेगमेंट में रहेगा क्या, नो सर, क्योंकि वहां पे इंस्ट्रक्शंस के ऑप कोड रहते हैं। हाँ हाँ, वहां पे मशीन लैंग्वेज के ऑप कोड्स रहते हैं इंस्ट्रक्शंस के।
तो आपका डेटा जो भी है वो डेटा सेगमेंट में रहेगा या फिर एक्स्ट्रा सेगमेंट में रहेगा। हम डिफॉल्ट हमेशा डेटा सेगमेंट लेते हैं। ओके, तो ऑपरेंड है वहां से मूव करेगा EX। इज इट क्लियर? नाउ द लास्ट वन। अच्छा, इसके लिए लिखो, राइट डाउन समथिंग अबाउट द बेस इंडेक्स एड्रेसिंग मोड। राइट डाउन द इफेक्टिव एड्रेस ऑफ डेटा, the effective address of data is formed by adding content of base register ब्रैकेट में लिखो BX और BP। आप BX भी लिख सकते हो यहाँ पे और BP भी कर सकते हो, देयर इज नो हार्म बिकॉज बेस रजिस्टर इज BX और BP। ब्रैकेट में क्या लिखा? BX और BP, ब्रैकेट क्लोज, टू द कंटेंट ऑफ इंडेक्स रजिस्टर्स, ब्रैकेट में लिखो SI और DI। ओके, बस बाकी का आपको लिखना तो लिख सकते हैं। द डिफॉल्ट सेगमेंट में बी ES और DS, ओके, सो नथिंग मोर एक्सप्लेनेशन। अगर पहले आपको समझ में आया तो ये उसका दोनों का कॉम्बिनेशन है। एंड द लास्ट वन वो भी इजी है, आपको खुद समझ में आएगा। द 8th one, write down the 8th one now. 8th one, that is based with displacement addressing mode. Based with displacement addressing mode. Based with displacement addressing mode. So here you can just yes, you can write down the example. Here you will understand the example. हाँ, यहाँ पे सर्कल क्या करना है? Based with displacement. And see the example. The example is move AX comma in the square bracket में देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, BX plus DI plus 08. Now here 08H is in general. That means I can take 8-bit or you can take 16-bit. For 16-bit you can just add down. Add the other example. Add CX comma in the square bracket. सर आपका स्क्रीन थोड़ा साइड में ये सेट करो ना। अभी ठीक है? तो वो पूरा नहीं दिख रहा है, कोड पूरा नहीं दिख रहा है साइड में। BX plus DI plus वो एड्रेस क्या है सर? अभी ठीक है? हाँ सर अभी ठीक है। हाँ, so this is in general 8-bit. You can take the displacement, या फिर with other example I will show with the 16-bit, that is CX comma BX plus SI plus 16H. So you can take 8-bit or 16-bit displacement. So this is in general, you can take any 8-bit to show the displacement, and this is in general 16-bit, you can take, okay, you can take anything in 16-bit, but that will show the 8-bit displacement and 16-bit displacement. That has to be added with SI or DI, that is index and the base register BX. So base register
plus index register plus displacement. Base register plus index register plus displacement. That is called as base with displacement addressing mode. Based with displacement addressing mode. Is it clear to everyone? Yes, sir. समझा. Oh, okay. So this is about the addressing modes we have completed. एग्जाम में आएगा तो 8 ही इंपॉर्टेंट है. इफ यू वांट टू राइट डाउन, जस्ट राइट डाउन द लिस्ट ऑफ 12, उसमें से 8 एग्जांपल एक्सप्लेन करना विद द एग्जांपल. इफ रिक्वायर्ड, डिपेंडिंग अपॉन हाउ मेनी मार्क्स द क्वेश्चन इज आस्क्ड, यू हैव टू शो द पिक्टोरियल व्यू जो मैंने अब तक दिखाया. फॉर दिस आल्सो यू कैन शो. एक में बेस दिखाओ, एक में इंडेक्स दिखाओ, रजिस्टर दिखाओ, एक में डिस्प्लेसमेंट दिखाओ, और तीनों बॉक्स को ऐड कर दो और फिर वो डाके ऑपरेंड को दिखा दो मेमोरी में. खत्म. सो डिस्प्लेसमेंट, बेस रजिस्टर, इंडेक्स रजिस्टर, तीनों को ऐड, बाद में इट पॉइंट्स टू द ऑपरेंड इन द मेमोरी. इट ऑपरेट्स पॉइंट इनटू द मेमोरी. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द addressing modes. Okay, now we will go to the programming. We'll go to the programming. I'm going to share the screen to show you the program, and I will explain here. Yes, my screen is available. Is visible to everyone? No, sir. दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? सर दिख रहा है सर. ये दिख रहा है क्या प्रोग्राम 8 बिट ऑफ एडिशन का? Yes, sir. Yes, sir. Yes. अभी जो now all of you please pay attention for 5 to 10 minutes. Okay, 5 to 10 minutes you pay attention. Whatever I have explained you in the TASM software, okay, though that program was specific to the version of TASM, और हम जो वर्जन डाउनलोड किए हैं for that version, the program which will be compatible or which will run in the TASM is this one. वो ये है. Okay, now with the minute modification जो हमने पहले किया था प्रोग्राम में, वही minute modification है, और वो कैसा है मैं फ्लो दिखा रहा हूँ, वो आपको समझा रहा हूँ. Okay, your program will start from, can you see a data segment? तो ये देखो यहाँ से लेके यहाँ तक, this is your data segment. You are specifying the data segment. आप डेटा सेगमेंट में क्या ले रहे हो वो स्पेसिफाई कर रहे हो. ये देखो नंबर 1, दिस इज वेरिएबल एंड db स्टैंड्स फॉर, नाउ db इज कॉल्ड एज अ डायरेक्टिव. डायरेक्टिव क्या होता है ये हम सब पढ़ने वाले आगे. ये इंस्ट्रक्शन सेट में ही हम पढ़ने वाले कि डायरेक्टिव क्या होते हैं. मैं सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि डायरेक्टिव इज द इंस्ट्रक्शन ऑफ 8086, बट दे आर नॉट द एक्चुअल इंस्ट्रक्शन, बिकॉज एक्चुअल इंस्ट्रक्शंस का क्या होता है, दे आर कन्वर्टेड इनटू मशीन लैंग्वेज. हर एक इंस्ट्रक्शन जो 8086 का है वो कन्वर्टेड होता है मशीन लैंग्वेज में. लेकिन ये जो डायरेक्टिव्स होते हैं जो एक्चुअली इंस्ट्रक्शंस नहीं होते, बट दे आर द डायरेक्शंस टू द प्रोसेसर, और they are not converted into the machine language. Okay, so here db is not the instruction, but they are called as a directive. तो आपको अगर वाइवा में या फिर आपको एग्जाम में पूछा जाएंगे कि which are the directives, so you should say db. That is what db stands for, defined byte. वैसे दूसरा डायरेक्टिव क्या होता है, defined word. वर्ड बोले तो it is 16, and defined byte means 8 bit. Now if you see properly, num1 is a variable, और वो वेरिएबल में मैंने क्या डाला है, 04. तो दिस इज अ प्रोग्राम टू ऐड 2 8 बिट्स ऑफ नंबर. एक नंबर है 04 और दूसरा नंबर भी है 04. तो 04 मैंने किस में लिया, num1 में लिया, सॉरी no1 में लिया, और दूसरा जो है वो सेकंड ऑपरेंड वो num2 में लिया, दैट इज no2. आप यहाँ पे कुछ भी वेरिएबल ले सकते हो. हमने पहले num1 num2 लिया था, अब यहाँ पे भी वही ले सकते हो. लेकिन यहाँ पे देखो स्टार्टिंग प्रोग्राम की कैसी होती है, वहां पे हमने लिया था डॉट मॉडल स्मॉल,
So dot model small will not work in this particular version of TASM. So that's why with these are the small modifications we have to do to see the actual to run the program. Okay. So NO1 DB04H. So that means you are taking the first operand in NO1. ये और ये सब कहाँ पे NO1 NO2 ये सब डेटा सेगमेंट में डिफाइन कर रहा हूँ. ओके. और सेकंड ऑपरेंड जो 04 है मैंने NO2 में लिया है. उसके बाद मैंने क्या किया, डेटा सेगमेंट को मैंने एंड कर दिया. सो डेटा एंड. तो यहाँ पे डेटा सेगमेंट को मैंने स्पेसिफाई किया है डेटा कौन सा मुझे डेटा सेगमेंट में डालने का है. तो यहाँ पे स्पेसिफाई. उसके बाद जो दिख रहा है आपको ये वाला, तो एक्चुअली मेरा कोड जो इंस्ट्रक्शन है वो इसके बाद में मैं लिखूंगा. तो ये जो यहाँ से लेके जो यहाँ तक है ये आपका कोड सेगमेंट में जाने वाला है. आप यहाँ पे कोड सेगमेंट स्पेसिफाई कर रहे हो, इसलिए यहाँ से लेके यहाँ तक ये कोड सेगमेंट है जो आप स्पेसिफाई कर रहे हो. तो उसको कैसे स्पेसिफाई करना है, जैसे आपने ऊपर लिखा था डेटा सेगमेंट, यहाँ पे आपको लिखना है कोड सेगमेंट. उसके बाद अज्यूम ds कोलन डेटा cs कोलन डेटा. तो ये जो है सेकेंड वाला. सो दिस इज वी आर मेकिंग द माइक्रोप्रोसेसर assume that ds is your data segment and your code is your code segment cs. तो प्रोसेसर को पता चल जाएगा कि the code is written in the code segment and data is written in the data segment. So we are assuming, so we are making the processor to assume. Okay. ये हमेशा ये लाइन रहने वाली है, हर प्रोग्राम में ये लाइन रहने वाली है आफ्टर कोड सेगमेंट. तो ये कोड सेगमेंट के बाद ये आप यहाँ पे जो आप कोड सेगमेंट लिख रहे हो, ये कोड सेगमेंट के बाद ये हमेशा ये लाइन रहने वाली है. ओके. सो हमेशा ये लाइन रहने वाली है, assume ds data and cs colon. उसके बाद the program will start that is a label. The label can be anything colon move ax comma data and move ds comma ax. ये जो पहले भी मैंने बताया था, लेकिन वहां पे जो मैंने टैज़म में लिख के दिया था वो कुछ अलग था, वहां पे @ था. लेकिन ये वर्जन जो टैज़म में हम जो वर्जन यूज कर रहे हैं उसमें @ नहीं आएगा. आपको सिर्फ सिंपल क्या लिखना है, मूव ax कॉमा डेटा मूव ds कॉमा as. तो ये जो दो लाइन है ये दिस विल बी ऑलवेज कॉमन. ओके. ये जो दो लाइन है वो हमेशा रहेगा. तो लेबल आप जब भी लिखोगे तो उसके बाद ये दो लाइन कंपल्सरी लिखना है. और ये दो लाइन के बाद एक्चुअली अपना जो एडिशन का प्रोग्राम है वो स्टार्ट होता है. तो ये दो लाइन क्या कर रहे हैं, जो मैंने वहां पे तभी भी बताया था, यू आर इनिशियलाइजिंग द डेटा सेगमेंट. आप इनिशियलाइजिंग द डेटा सेगमेंट, दैट मीन्स द डेटा इज मूव इनटू ax एंड दैट ax इज इन द डेटा सेगमेंट, जो हमने पहले भी किया था. ओके. सो व्हाइल एक्सप्लेनिंग यू द फ्लो ऑफ दिस प्रोग्राम, आई हैव टोल्ड यू that address, what is this ax comma data, this is address of the data in the memory location that is moved into ax, and this second line is initializing your data segment. This second line that is ax comma data is initializing your data segment. So ये दोनों भी मिलके you can say in general they are used, these two instructions are used to initialize the data segment. तो ये हमेशा रहने वाला है, ये दो लाइन हमेशा रहने वाली है. ओके. और अगर आपको स्पेसिफिकली बताना है पहली लाइन क्या कर रही है, तो आप इतना ही बता सकते हैं कि एड्रेस ऑफ द डेटा इज मूव इनटू ax and the second line is initialization of data segment. Okay. So that is the meaning of these two. And see the actual program now. The actual program is here. Move al comma no1 में मैंने क्या रखा था डेटा सेगमेंट में 04. तो 04 मूव होगा al में. दिस इज al, दिस इज नॉट a1. और मैंने क्या प्रोग्राम लिखा है, 8 बिट ऑफ एडिशन है आपका. तो 8 बिट ही मुझे लेना है, बराबर है. तो 8 बिट जो है आपका 04 कितना है, 8 बिट का है. 0 बोले तो 0000 और 4 बोले तो 0100. ठीक है. तो दोनों मिलके 8 बिट हो गया. तो N01 में जो 8 बिट है दैट इज मूव इनटू al. तो यहाँ पे क्या कमेंट लिखा है मैंने, सो यू कैन राइट डाउन द कमेंट आफ्टर डबल स्लैश. सो द कमेंट इज टेक फर्स्ट ऑपरेंड इज al. तो मैंने मूव किया. सेकंड देखो क्या कर रहा है, सेकंड ऑपरेंड मूव इनटू bl.
second operand move into BL. Okay, so the take second operand in BL, then AL में अभी 04, ये वाला 04 और BL में ये 04, दोनों को ऐड करना है, तो यू हैव इंस्ट्रक्शन ऐड AL, BL. तो ऐड AL, BL क्या करता है, AL में जो है और BL में जो है वो दोनों को ऐड करता है और जो रिजल्ट है वो AL में स्टोर करता है, ओके. तो ये होने के बाद we are calling the interrupt 03H, that is called interrupt 03H. So what is 03H? This is a particular interrupt, so this thing we'll see afterwards. तो जैसे मैंने पहले बताया था वो दूसरे वर्जन के लिए, टाइजम के लिए, वहां पे हमने लिखा था INT 21H, ओके. तो वैसे ही ये वर्जन के लिए वी आर यूजिंग INT 03H. So what is the meaning of this? We'll see afterwards. जब मैं इंटरप्ट पढ़ाऊंगा तो ये सब पढ़ने वाले हम. So you are actually calling the interrupt 03H. Then code ends. तो योर कोड सेगमेंट जो मैंने स्टार्ट किया था वो कोड यहाँ पे एंड करना है, तो कोड एंड्स. कमेंट क्या है, कोड सेगमेंट एंड्स. और लास्ट वाला है एंड स्टार्ट. जो हमने लेबल स्टार्ट किया उसको एंड तो करना पड़ेगा ना, तो योर स्टार्ट हमने यहाँ पे किया था, दैट लेबल इज एंडिंग हियर, सो एंड स्टार्ट, योर प्रोग्राम एंड्स हियर. Similarly, this is for 8 bit of subtraction. You can go through this. This is also easy. सिर्फ यहाँ पे एक लाइन चेंज है, वो ये है, SUB AL, BL. इसमें BL will be subtracted from AL and the answer is stored into the AL. Okay. Similarly, वो देखो ऊपर वाला 8 बिट का एडिशन था, ये देखो 16 बिट में क्या चेंजेस है. हमने डिफाइन वर्ड करना है, हम यहाँ पे डिफाइन बाइट नहीं कर सकते, क्योंकि डिफाइन बाइट करेंगे तो ये 8 बिट का एडिशन जैसा, यानी it cannot, your N01 will not store 1020. 1020 कितने साइज का है, 16 बिट का है. तो आपको अगर N01 में स्टोर करना है 16 बिट, तो आपको DW ही लिखना पड़ेगा, दैट इज डिफाइन वर्ड. वैसे नीचे भी वही है. अब यहाँ पे भी सिर्फ एक चेंज है, एड AX, BX. मैं यहाँ पे AL, BL नहीं लग सकता हूँ, क्योंकि आपको पता है AX 16 बिट को हैंडल कर सकता है और BX भी 16 बिट को हैंडल कर सकता है. ओके, सो यू डू दिस एज अ होमवर्क. ओके, ये सब एग्जीक्यूट करो. ये भी 16 बिट का है, यहाँ पे भी एक ही चेंज है, ये वही जो मैंने वहां पे लिया था, AX, BX सम. And this is what is the output. So I want everyone to do this, execute this program in the TASM. See result आता है नहीं आता. Otherwise I will explain you. I will take only one example, addition of 8 bit. I will show you the execution of the program and where to see the output. Okay, क्योंकि ये सब आउटपुट आने के बाद आपको प्रिंट आउट लेना है. प्रिंट आउट, you cannot take the print out, but at least you have to कॉपी पेस्ट in this particular format. ये जो मैंने फॉर्मेट है, और ये सब फॉर्मेट मैंने आपको क्लासरूम में स्टडी मटेरियल में भेजा है. So I want everyone to go through this. Okay, I hope you have understood this. If you have question, you please ask. Otherwise, Parmeshwari madam, you can take the attendance. हॅलो सर, परमेश्वरी मॅम लेक्चर मध्ये नाहीये. अच्छा ठीक है, मैंने तू अटेंडेंस घेऊन टाक. हाँ भुवना. हेलो तानिया. ठीक है, मैं लेता हूँ. रोल नंबर 1 present. 2. रोल नंबर 3. 3 present. 4 present. 5 5 present. 6 6 6 present. 7 Those who don't have any doubt can leave the session after giving attendance. किसको कुछ प्रॉब्लम है तो you can wait. After the attendance you can ask. 8 present, Manish. 8 present. 9 9 हाँ 10 present. 11 11 present. 12 12 present.